Hello everyone, my name is Dr. Mansur Hanif. I'm Assistant Editor at Dental News Pakistan and I'm so excited to welcome you all to this live session brought to you by Pakistan Dental Association, PDA and Dental News on the topic of current pandemic situation and its impact on dental professionals and dental practices. Since the outbreak of COVID-19, each fabric of the society got affected. The recent escalation of the COVID-19 situation has definitely affected every domain of human life. The sudden surge has raised fears that the outbreak could pose a major challenge to an already strained national healthcare system. Dentists are at greater risk as they can encounter diseases and infections daily and typically work in close proximity to one another and their patients. Along with issues of cross-infection, dentists are also facing huge setback in terms of running their practices as well. To discuss these pertinent issues and more, we have with us renowned dental professionals from all over Pakistan. There are also the office bearers of provincial and city branches of Pakistan Dental Association (PTA) established all over the country. Pakistan Dental Association is an organization of dentists aiming the encouragement of the health of public and the promotion of the art and science of dentistry. Over 90% of dentists in Pakistan are members of PTA. Pakistan Dental Association aims to maintain the honor, interest, dignity, and unity of dental profession, and also to enlighten, educate the public on dentistry, or health and prevention. It also works to guide and help members of the profession, especially fresh graduates, in the establishment of the career. I welcome my panelists for today's discussion, starting from Dr. Mahmood Shah. Dr. Saeed Mahmood Shah is the president of Pakistan Dental Association Center since 2017, and for over 20 years, he has been practicing in private dental hospitals and working for the betterment of the dental community in Pakistan. Then we have Dr. Umair Farooq Raja. He is President Pakistan Dental Association Federal Chapter and is currently working as Vice Principal and Head of Department of Chirurgy Dentistry at Bateem Dental College and Hospital, Rawalpindi. Next up, we have Dr. Mujib Rahman. He is President Pakistan Dental Association Sindh. At present, he is serving as Senior RMO Journal. He is also serving as focal person for COVID-19 at Liaquat University Hospital, Hyderabad. Next up, we have Professor Dr. Noorul Baham. He is President Pakistan Dental Association Karachi. We have Dr. Hassan Bashir with us. He is President Pakistan Dental Association Gujranwala. Then we have Professor Javed Ahmed. He is Head of Executive Official Surgeon and Vice Principal of Sardar Begum Dental College, Gandhar University, Peshawar, and also the President of Pakistan Dental Association, Peshawar. Next up, and last but not the least, we have Dr. Jahangir Hamad. He is Associate Professor, Oral and Maxillofacial Surgery, Bolan University of Medical and Health Sciences, and Civil Hospital, Quetta, and the President of PTA of Balochistan. Thank you everyone for making this discussion possible. Let's start with Dr. Mahmood Shah first. Sir, how are you looking at the current situation of pandemic right now? जी वालेकुम अस्सलाम। हाँ, कोविड सिचुएशन तो बहरहाल काफ़ी सीरियस है और डिसअपॉइंटिंग है, लेकिन उससे पहले मैं क्योंकि ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड जाएगी तो दो तीन तो मैं थोड़ा सा उसको तो ये कि एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट 90% डेंटिस्ट आर नॉट मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन। ये हमने एक रिलैक्सेशन दी भी है कि भाई जो अदरवाइज द कॉन्स्टिट्यूशन सेज ओनली दोज आर बोना फाइड मेंबर्स ऑफ पीडीए जो हु पे ईयरली एनुअल मेंबरशिप फीस टू द एसोसिएशन, क्योंकि एसोसिएशन ने भी तो आखिर चलना है ना। तो एक बात ये, लेकिन ये है कि हमने जरा बड़ा दिल करके ना सब कोई 90% नहीं बल्कि 100% कोई अपने फोल्ड में लिया हुआ है, जो आना चाहे वो आ सकता है, लेकिन ये एक टेम्पररी फेज है। दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन है ये बेसिकली इट इज द नेशनल डेंटल एसोसिएशन। हर कंट्री की ना एक नेशनल डेंटल एसोसिएशन होती है जो कंट्री की डेंटल आइडेंटिटी होती है। तो पाकिस्तान डेंटल, जैसे इंडिया में इंडियन डेंटल एसोसिएशन है, ब्रिटिश डेंटल एसोसिएशन है, अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन है, सिमिलरली पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन इज द नेशनल डेंटल एसोसिएशन, तो वी हैव टू सी इट इन दैट पर्सपेक्टिव। तीसरा वो जो आप बता रहे थे कि पीडीए से और मेरी प्रैक्टिस को 20 साल हो गए, तो मैं पता नहीं शायद लगता नहीं है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करते हुए 35 साल हो गए, 35 इयर्स। आई बीन प्रैक्टिसिंग सिंस 1985 और 1985 में ही मैं पीडीए के अंदर आया था और मेरे मेंटर डॉक्टर इनायत पाडियर साहब थे जो मुझे लेकर के आए थे एज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर। तो ये दो तीन बातें मैंने कहा कि फॉर रिकॉर्ड से मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। और दूसरी चीज अब आ जाइए कोविड के ऊपर। देखें, कोविड का इशू तो है, ये जो पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन ने इन कोलैबोरेशन विद डेंटल न्यूज ये वेबिनार जो किया है, ऑब्वियसली हमारी 19 ब्रांचेस हैं, तो सारी ब्रांचेस को तो इकट्ठा हम सारे प्रेसिडेंट को नहीं
सक रहे थे, क्योंकि वो फिर बहुत बड़ा फॉरम हो जाता और वो रिपीटेटिव टॉक होती। तो हमने जो 2 बड़े प्रोविंसेस हैं, एक पंजाब और एक सिंध, वहां से मैंने ये रिकमेंड किया था कि आप 2-2 प्रेसिडेंट्स ले लें, और बाकी कोयटा तो बलूचिस्तान में एक ही ब्रांच है, कोयटा ब्रांच है, और वहां पर पेशावर ब्रांच है केपी में, तो वहाँ के वो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और एक फेडरल जोन का हो। आई डोंट नो डॉक्टर उमैर आए हुए केपी फेडरल जोन से? सर अस्सलाम वालेकुम, आई एम हियर सर। अच्छा उमैर आए हैं सर और मैंने कहा था एक फेडरल की रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो बेसिकली हमने देखना ये है कि इस वक्त जो एक जनरलाइज्ड, एक बड़ा डीमोरलाइज्ड सिनेरियो बना हुआ है, डेंटिस्ट परेशान हैं, अर्निंग्स भी इतनी नहीं है, डर खौफ भी लगता है कि कहीं कोविड कॉन्ट्रैक्ट ना कर लें, कुछ ने कर भी लिया है, कुछ की अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो गई, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो ये सारे सिनेरियो के अंदर, और ये कब तक चलेगा नोबडी नोज, यू आर फाइटिंग एन इनविजिबल एनिमी, और ये कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। तो एवरी डे इज अ चैलेंजिंग डे फॉर ऑल ऑफ अस। तो आज साथ बैठने का कुछ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रांचेस, क्योंकि बेसिकली सेंट्रल काउंसिल वर्क्स थ्रू इट्स ब्रांचेस, क्योंकि जो शहर के अंदर, अब मैं जाहिर सी बात है गुजरांवाला में जा करके या इस्लामाबाद में जा करके सेंट्रल काउंसिल फंक्शन नहीं कर सकती है, गाइडलाइंस दे सकती है, लेकिन वहाँ के ऑफिस बेयरर्स ने काम करना है। तो बेसिकली पर्पस ये है कि आज हम ये देखें कि ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि ये किस तरह से अफेक्ट कर रहा है डेंटल कम्युनिटी को, उनकी साइकी को, उनकी फिजिकल वर्किंग को, उनके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को, both in the public sector as well as in the private sector and as well as in the academical institutions। ये 3 जहाँ पर डेंटिस्ट होते हैं हमारे, तो और वो और उनकी जो है ना, we try to identify remedies कि उनके लिए डेंटल एसोसिएशन क्या कर सकती है, क्या सजेशंस दे सकती है, और क्या प्रैक्टिकली स्टेप्स ले सकती है, और गवर्नमेंट से क्या हम डिमांड कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड द व्यू कि इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान के माशाल्लाह प्रेसिडेंट हैं, ही इज अ पास्ट PDA सेंट्रल प्रेसिडेंट आल्सो, ही नोज द प्रॉब्लम्स ऑफ द डेंटल कम्युनिटी, एंड आई हैव ट्राइड टू रीच हिम मेनी टाइम्स, ऑल्दो इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि इवन देन वी विल कीप ऑन ट्राइंग कि हम अपने प्रेसिडेंट साहब से भी कहें कि भाई आप डेंटल सर्जन्स के लिए कुछ देखिए, क्योंकि जो मेडिकल वालों को जो मिल रही है थोड़ी बहुत अटेंशन, वो डेंटल वालों को नहीं मिल रही है। तो ये सारा प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं चाहूँगा कि एक ये डॉक्टर बख्तर जो है एक एक ब्रांच के प्रेसिडेंट से उनके व्यूज ले लें, एंड देन वील सम अप। बिल्कुल सर। डॉक्टर उमैर, डू यू वांट टू ऐड इनटू दिस? अस्सलाम वालेकुम। Yes, sir. First of all, I must appreciate Dental News for basically taking the initiative and taking everybody on board on this highly intriguing and relevant matter at the moment. सबसे पहली चीज़, जैसे डॉक्टर महमूद शाह ने भी जिक्र किया इस चीज़ का कि वी आर लिविंग इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, ये नॉर्मल हालात नहीं है, और जिस तरह की पैंडेमिक ये भी हमें सामना हम कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कितना अर्सा इस चीज़ के साथ हमें गुजारना पड़ेगा, बट वी विल हैव टू लर्न एंड लिव विद कोविड थ्रू दिस। कुछ नए चैलेंजेस हैं जो बीइंग डेंटल प्रोफेशनल्स जो हम सब लोगों ने फेस किए हैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स के हवाले से। कई ऐसी चीज़ें हैं जो तकरीबन आपके तमाम वॉक्स ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट किया है। डेंटिस्ट्री तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा हाईलाइट होगी इसके अंदर और ज़्यादा इफेक्ट भी हुई है, क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट अ ग्रेटर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इन्फेक्शंस टू आवर प्रोसीजर्स। हमारे जितने भी प्रोसीजर्स होते हैं, जनरल डेंटिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, दे आर नॉर्मली क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं। हम जो हैं वो ज़्यादा कंसल्टेशन या इस तरह की चीज़ें शायद ज़्यादा रेलेवेंट ना हो हमारी फील्ड से, लेकिन जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, चूँकि हम उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, डेंटिस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड इट, तो वी आर एट अ ग्रेटर रिस्क। अभी जो कोरोना और कोविड के हवाले से जो अभी अपडेट है, सर महमूद शाह he took the initiative when this pandemic was in a very nascent stage. हमने हमारा जो अपना एक इंटरनल ग्रुप है, we started working on some SOPs and Dr. महमूद शाह साहब basically appointed a committee to work through it. मेरे ख्याल में जवाद कुंडी साहब जो सर हमारे थे, he was a part of that committee as well, who formulated the guidelines. He would be better suited to basically convey us the details of that.
मीनवाइल फिर मिनिस्ट्री की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस आ गई डेंटल प्रोफेशनल्स के हवाले से, जो HSA हेल्थ सर्विसेज एकेडमी हमारी है उसमें कुछ जो इंडिविजुअल्स बैठे हुए थे उनसे ये बनी थी। जो लब्बे लुबाब जो सारी चीज़ का है वो ये है कि बेसिकली डेंटल जो फिटर्निटी है वो इस सारी सिनेरियो से बहुत सीवियरली इफेक्ट हुई है। और एक इसका एक कोविड का एक फियर है, कोविड का एक जो आप कह सकते हैं कि एक खौफ था लोगों में, उसकी वजह से आपकी जो पोटेंशियल जो आपके जो जो पेशेंट्स फिटर्निटी थी वो भी रिड्यूस हुई है। और डेंटिस्ट्री जहाँ पे भी है पूरे पाकिस्तान में भी अभी तक अपने फुल पोटेंशियल पे दोबारा रिस्टोर नहीं हो सकी, इवन थ्रू SOP से। जो भी इस्लामाबाद की जो करंट सिचुएशन अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो वो ये है कि जो जितने हमारे बड़े टीचिंग हॉस्पिटल्स थे डेंटिस्ट्री के, वो तो उनमें तो खाली रूटीन की इमरजेंसी केसेस या डेंटल कंसल्टेशन चल रही है। जो रूटीन के जो आपके क्लिनिकल प्रोसीजर्स होते हैं दे आर ऑल सस्पेंडेड। हमारे जो प्राइवेट प्रैक्टिसेस हैं वहाँ पे द ट्रेंड वेरीज। कुछ हमारे डेंटल सर्जन ऐसे हैं जो who are mavericks, who are good in following SOPs. They following all proper PPEs, all proper PPE kits, face shields, N95 mask and everything. They're continuing their dental practice with obviously with the full following of all SOPs. कुछ हमारे डेंटिस्ट ऐसे हैं जो इस फियर की वजह से दे हैव बेसिकली शट डाउन देयर प्रैक्टिसेस, दे आर फेसिंग फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एज वेल। और जाहिर बात है एक स्टिग्मा ही कहूँगा मैं इस चीज़ को कि आप जहाँ पे भी डेंटिस्ट्री की बात करते हैं किसी भी हुकूमती सर्कल्स के अंदर, तो एक जो चीज़ डेंटिस्ट्री से मुंसलिक की जाती है वो ये है कि चूँकि डेंटिस्ट्री और डेंटल ट्रीटमेंट बहुत महंगी है तो ऑल द डेंटिस्ट दे आर वेरी वेल ऑफ। तो उनको शायद इस पूरे सिनेरियो से हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स के बंद होने से इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना बाकी इंडस्ट्री को या बाकी किसी चीज़ को पड़ेगा। तो एक तो मेरे ख्याल में इसमें हमारी एसोसिएशन का रोल आ जाता है कि हम डेंटिस्ट्री की जो आवाज़ है वो सर्कल्स जो हुकूमती सर्कल्स हैं उन तक उठाएं, उनको बताएं कि इस वक्त डेंटल सर्जन जो हैं वो क्या जो मुश्किलात हैं वो फेस कर रहे हैं और उनका क्या सदबाब होना चाहिए। आया हमें रिलीफ चाहिए इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज़, आया हमें रिलीफ चाहिए इन टर्म्स ऑफ एनी स्पेशल ग्रांट्स, या क्या we all need to sit down and basically formulate some demands, formulate some way forward for all our dental fraternity. बिल्कुल। I'll move on with Dr. Mujib Rahman. Sir, what is the situation for dental practices and for dentists in interior Sindh and from the cities of Sindh? वहाँ पे कैसी situation है? जी बिल्कुल। पहले तो मैं आप डेंटल न्यूज़ का और डॉक्टर महमूद शाह का थैंकफुल हूँ। उन्होंने डेंटल प्रोफेशन के लोगों के लिए, डेंटल फैमिली के लिए बहुत से एफर्ट्स लिए हैं और ये एक बर्निंग इशू है आजकल हमारे डेंटल प्रोफेशन में। उसको बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए था। ये इनिशिएटिव डेंटल न्यूज़ और पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन सेंट्रल काउंसिल ने लिया। थैंकफुल टू देम। और सबसे पहले बिल्कुल ये जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है हमारे कंट्री में, सबसे ज्यादा इफेक्टिव हम डेंटिस्ट हैं, क्योंकि हमारा जो कांटेक्ट है, कितनी भी आप SOPs बनाएं लेकिन उस SOP के तहत हम नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हमारा कांटेक्ट पेशेंट के साथ वेरी क्लोज है। उस SOP के जो सोशल डिस्टेंसिंग ये वो जो भी चीजें आप करें, लेकिन हमारी जो प्रैक्टिस है उसमें हमारा वेरी क्लोजेस्ट एंड नियर कांटेक्ट है पेशेंट के साथ। और दूसरी बात ये है कि हमारे 3 डेंटल सर्जन हैदराबाद के कोविड पॉजिटिव हुए हैं। एक मेरा रजिस्ट्रार एडमिन, एक हमारा सीनियर डेंटल सर्जन, एक हमारा शहदादपुर का डॉक्टर साहब है, वो भी कोविड का डिस्ट्रिक्ट का फोकल पर्सन है, डॉक्टर सादिक। वो 3 डॉक्टर साहबान जो मेरी नॉलेज में हैं वो कोविड पॉजिटिव हुए हैं। और मैं ये आपको गुजारिश करूंगा कि मैं बीइंग अ डेंटल सर्जन और डॉक्टर सादिक बीइंग अ डेंटल सर्जन, वी आर फ्रंट लाइन सोल्जर्स फाइटिंग अगेंस्ट द कोविड, रिप्रेजेंटिंग आवर फैमिली ऑफ डेंटिस्ट्री। और दूसरी बात ये है कि जो भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं वो सब उन्होंने लिए हैं उन लोगों के लिए जो कोविड को डील कर रहे हैं, कोविड के पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये जो RT-PCR टेस्ट ये लोग करा रहे हैं, जिसपे ये डिपेंडेंट हैं कि ये टेस्ट जो है वो रिलायबल है, दैट इज 61%। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसमें ये है कि बहुत से केसेस ऐसे आए हैं जो फॉल्स पॉजिटिव भी हुए हैं, फॉल्स नेगेटिव भी हुए हैं। और आपको रिपोर्ट मिली, आप रिलैक्स हो गए
कि जी ये नेगेटिव हो गया, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है कि नहीं, वो नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि उसने जो टेस्ट कराई है उस वक्त उसके वायरस इंक्यूबेशन पीरियड जो था वो प्रॉपर इंक्यूबेशन पीरियड से पहले उसने टेस्ट कराया, लेकिन उसके पास इन्फेक्शन था। हम इस टेस्ट पे रिलाय करके अपने डॉक्टर्स को डेंजर में नहीं डाल सकते। सपोज आप टेस्ट करवाएं, पेशेंट करें, फिर भी वो ऑथेंटिक नहीं है, उसमें भी आपको बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे। आपको पीपीईज, गवर्नमेंट को, डेंटल सर्जन्स को फुल पीपीईज प्रोवाइड करनी चाहिए, नॉट ओनली द गवर्नमेंट डेंटल सर्जन्स, ऑल प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, सबको गवर्नमेंट को पीपीईज देनी चाहिए। और दूसरी बात, डॉक्टर्स को, डेंटल सर्जन्स को फ्रंट लाइन सोल्जर्स डिक्लेयर करना चाहिए। क्यों कि भले जो कोविड का पेशेंट है उसमें वो जो डॉक्टर साहब जाके, उसमें मुझे पता है जो वार्ड में जाके वो पेशेंट को देख रहा है वो डिस्टेंस से देख रहा है, लेकिन डेंटल सर्जन डिस्टेंस में नहीं है, वो वेरी क्लोज है। तो 1 फुट का डिस्टेंस होता है हमारा पेशेंट के बीच में जब हम प्रोसीजर करते हैं। और सपोज अगर हम उस टाइम पे आपका फेस शील्ड यूज करें या और मास्क यूज करें, बिल्कुल पीपीज पहने, लेकिन उसके बाद भी ये है कि आपकी प्रैक्टिस इफेक्ट हो जाएगी। नंबर 1, गवर्नमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि डेंटिस्ट्री के लिए कुछ ना कुछ उनको सोचना पड़ेगा, और डेंटल सर्जन्स के लिए कुछ इंसेंटिव डिक्लेयर करें। और डेंटल सर्जन्स को, प्राइवेट डेंटल सर्जन्स को, मैं एक सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं करूंगा, हम सबकी बात करेंगे, सबको, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो उनको पीपीईज प्रोवाइड करें, क्योंकि एक तो जो हमारा पेशेंट का रेशियो है क्लिनिक में वो बहुत डिक्रीज हो गया है और टाइमिंग भी डिक्रीज हो गई है। और दूसरी बात ये है कि आपके जो अखराजात हैं क्लिनिक के वो वही के वही हैं जैसे थे सपोज मार्च से पहले। जो भी आपके अखराजात हैं, सब क्लिनिशियन हैं, सबको पता है, सबके अखराजात वही के वही हैं, और इनकम कम हो गई है, टाइमिंग कम हो गया है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि डेंटल सर्जन्स को कुछ न कुछ प्रोवाइड करें। और गवर्नमेंट डेंटल सर्जन्स जो हमारे जैसे, मैं इधर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हूँ, हमारी डेंटल ओपीडी जो डील करती है मोर देन 500 पेशेंट्स पर डे, और हमारी डेंटल कॉलेज है, यूनिवर्सिटी वालों ने तो अपने स्टूडेंट्स को छुट्टी दे दी है, उनके पोस्ट ग्रेजुएट्स को भी उन्होंने छुट्टी दे दी है, लेकिन जो हम गवर्नमेंट के डॉक्टर हैं हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं है, हमें मजबूरन काम करना है। फिर हमने क्या प्लान किया, हमने ये किया कि बाबा जो अक्यूट इमरजेंसी में पेशेंट आए उसको डील करो, जो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है उसको डील नहीं करो, क्योंकि जितने पेशेंट आ रहे हैं हर पेशेंट के साथ फ्रेश पीपी गवर्नमेंट नहीं दे सकती, बिल्कुल भी नहीं दे सकती, भले वो क्या भी कहें। अगर वो कहें कि हम सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ऑन पेपर्स तो हो सकता है, लेकिन फिजिकली रियलिटी में ये चीज नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, अर्जेंट बेसिस पे जो बेसिकली जो डेंटल ट्रीटमेंट हो सकती है वो इस वक्त की जाए। मैं मूव ऑन करूँगी विद प्रोफेसर जावेद अहमद, ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम खैबर पख्तूनख्वा। सर, वहाँ की सिचुएशन कैसी है? डेंटल प्रैक्टिसेस हो रही हैं लॉकडाउन में? व्हाट इज द सिचुएशन ओवर देयर? थैंक यू जी मातर, बहुत शुक्रिया डेंटल न्यूज़ का भी और पीडीए पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन का कि उन्होंने इस बहुत रेलेवेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। एक तो हम पेशावर में और केपी में जनरली वही सूरत हाल रही है जो कि सारे मुल्क की रही है कोविड के सिलसिले में, और शुरू का जो पीरियड था वो वही था, स्केप्टिसिज्म का था कि जी ये है भी नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज दैट द थ्रेट इज देयर and it is very much there and it is a dangerous thing. और this casual attitude, people had to pay a price for that as well. Dental services जो है वो for the last 3.5 months वो suspended हैं, हमारे teaching hospitals भी, except for very severe emergency care या मैक्सफैक्स के जो ट्रॉमा है या कैंसर के ऐसे एडवांस्ड केसेस हैं जिनको केयर की जरूरत है, या इन्फेक्शंस हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं।
उनके अलावा जो है हम डेंटल केयर और डेंटल सर्विसेज जो है वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे। क्लिनिक्स जो है वो सब्जेक्टिव है, कुछ क्लिनिक्स जो है वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, कुछ क्लिनिक्स जो है वो बंद हैं। ज्यादातर क्लिनिक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ओपन अप होने लग गए हैं और ऑफ कोर्स वी सी टू एक्सट्रीम्स ऑफ प्रैक्टिसेस। एक तो वो एक्सट्रीम है कि जी केयरलेस एटीट्यूड है, सिर्फ एक मास्क लगा के ट्रीटमेंट हो रही है, और एक दूसरा एक्सट्रीम वो है कि पेशेंट का सर जो है वो एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर है और डॉक्टर ने भी दो साइडों से हाथ घुसाए हुए हैं और असिस्टेंट भी एक ऊपर साइड से हाथ घुसा के, और डॉक्टर ने रेस्पिरेटर भी लगाया हुआ है और असिस्टेंट ने भी लगाया हुआ है। सो वी आर स्टक बिटवीन टू एक्सट्रीम्स ऑफ द रियालिटी। और I personally believe कि if we take care of the standard protocols for infection control, of course with extra precautions for COVID, कि हर पेशेंट और दूसरे पेशेंट के बीच में जो हॉस्पिटल डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो यूज किए जाएं to disinfect your dental unit and the tray and everything else, and give it at least 10 minutes. The area should be well ventilated, और वो जो अब एक एरोसोल सक्शन डिवाइस भी आया हुआ है मार्केट में, तो वो भी हो तो आई थिंक, एंड इफ द डॉक्टर एज वेल एज द असिस्टेंट wears the standard masks, the KN95 or the N95, and they protect their eyes with standard medical glasses or face shield, whichever is easily available. I think, inshallah, the threat can be curtailed and can be minimized to realistic extent. बिल्कुल सर। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि सर डेंटल एजुकेशन और डेंटल स्टूडेंट्स के बारे में क्या सिचुएशन है, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस अब शिफ्ट हो गई हैं, सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए, COVID has been a very interesting situation, strange, interesting, fearful. हर एक बंदे का अपना टेक था on this. But I have realized one very important thing, that the essential skill that a teacher develops over time, that he takes live feedback from the students during the class, and that feedback may not necessarily be verbal feedback. That feedback is in the facial expressions of the students, whether they are grabbing a concept that he's trying to develop or building up. वो फीडबैक, एसेंशियल फीडबैक, वो मिसिंग होता है कि ऑनलाइन क्लासेस से या वीडियोस से और इन चीजों से। और इवन इफ इट इज अ लाइव क्लास ऑन Zoom, you can only see 10-15 faces at the same time, and the rest of the faces are hidden from you. तो ये जो चीज है ना जी, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं, कभी ऑनलाइन क्लास जो है वो इन पर्सन क्लास के मुतबादिल नहीं हो सकती, स्पेशली इन मेडिकल साइंसेस। दूसरी जो कमी मुझे पर्सनली महसूस होती है वो है कि आप प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं सिखा सकते। वीडियोस और ये सब कुछ तो है, पर प्रैक्टिकली मरीज पे काम हो रहा हो, उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, so that can't be a replacement for the videos, can't be a replacement for the live thing. तो क्लासेस चल भी रही हैं, but colleges are still closed. यहाँ KP में तो all dental colleges and classes are closed. There is no live interactive session, और ऑनलाइन क्लासेस सारी जगहों में चल रही, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, पब्लिक सेक्टर में, with mixed feedback from the students. Of course, students have a very good case this time of delaying their exams and not getting what they have been taught. तो वो और भी ज्यादा उनके पास एक अच्छा वो है, reason है to complain that the delivery of the educational matter was not up to a certain standard or not up to a certain quality. So I think कुछ सालों में तो आप वो कर सकते हैं, कुछ years ऐसे हैं जिनमें आप
जहाँ जो क्लिनिकल नहीं है, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया या सेकेंड ईयर, पर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स BDS में स्पेशली क्लिनिकल ईयर्स होते हैं, एंड मोर सो इन फाइनल ईयर, तो वो जो है वी कांट कॉम्पेंसेट फॉर एनी ऑफ दैट इन ऑनलाइन टीचिंग। हाँ, उसका एक रास्ता ये है कि द यूनिवर्सिटी और द कॉलेजेस कैन इंडिजिनसली डिसाइड कि जी ये एसेंशियल कंपोनेंट क्लिनिकल जो है ये थर्ड ईयर का मिस हो गया है, सो वील extend the final year to instead of 9 month or an 8 month academic year, this time our academic year will be of 11 or 12 months, और हम जो है जो थर्ड ईयर में रह गया था वो हम फाइनल ईयर को उस वक्त पढ़ाएंगे। और फाइनल ईयर का ये हो सकता है कि अगर उनको बहुत जल्दी एग्जाम देने की अवल तो नहीं होनी चाहिए, बट बहुत जल्दी है, तो हमने उसकी यही सोचा है कि फिर उनके लिए स्ट्रक्चर्ड हाउस जॉब हो, और हाउस जॉब में उनको एसेंशियल स्किल्स सिखाई जाए जो फाइनल ईयर में समहाउ दे forgot to learn or they couldn't learn because of this COVID lockdown. But that is one of the ways that this can be done. मेरे ख्याल से hopefully the government will decide on opening up the institute soon, and hopefully inshallah things will get back to normal soon. Dr. Jawad with us. I shall move on with Dr. Jahangir. He has joined us from the province of Balochistan. Dr. Jahangir, are you with us? Assalamu alaikum. Welcome, sir. Sir, I actually just wanted to know the situation at Balochistan. Thank you to Dental News and Dr. Mehmood Shah, and thank you to all the residents. From Quetta, the current situation is, I think, under control. First, जो हमें फेस हुआ था प्रॉब्लम, इनिशियली डेंटल सर्जन से ही हुआ था। हमारे दो डेंटल सर्जन, डॉक्टर फजल बाबर एंड डॉक्टर ज़िया, डेंटिस्ट थे जो कि मार्च के इनिशियल फर्स्ट वीक में ही इन्फेक्टेड हो गए थे, और दे केप्ट इन द क्वारंटाइन इन शेख ज़ैद हॉस्पिटल अबाउट 6-7 किलोमीटर्स अवे। इस सिनेरियो में सारे डेंटल सर्जन्स ने क्विट कर लिया था प्रैक्टिस, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बेसिकली हम जो देख रहे हैं PDA का ये रूप मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। जब से मैं देख रहा हूँ PDA हमारे यहाँ जो बलूचिस्तान में यहाँ की प्रोविंशियल की PDA थी, उन्होंने ताज़ियतों के अलावा, हम यही समझते थे शायद सिर्फ ताज़ियत के लिए PDA था। फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम्स कुछ, एंड ये अच्छी बात है। इस वक्त जो हम प्रॉब्लम्स फेस आई थिंक सर का माइक दोबारा म्यूट हो गया। डॉक्टर जहांगीर, आपका माइक म्यूट हो गया। जी सर, आपकी सर बात बीच में रह गई थी। कैन यू प्लीज कंटिन्यू? कह रहा हूँ कि कहाँ से ब्रेक हुई थी। बेसिकली जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो रही है, हमारे पास ट्रामा सेंटर है, और ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी केसेस आते हैं जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और सूरत हाल ये है कोयटा में कि हमने PPE अपने पैसों से चंदा करके इकट्ठा करके गवर्नमेंट को काफ़ी हमने बार कहा ताकि हम एटलीस्ट ट्रामा सेंटर की जो प्रोसीजर है जिसमें फेशियल ट्रामा है, या पेशेंट्स आते हैं विद लुडविग्स एंजाइना सेलुलाइटिस वगैरह, इनके पेशेंट्स आते हैं जो हम डिनाई नहीं कर सकते कि हम ट्रीट नहीं करेंगे, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं, समटाइम अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग वगैरह होती है। तो उनको मैनेज करने के लिए भी गवर्नमेंट ने हमें काफ़ी अरसे तक PPE, और जब हमने अपने पैसों से कुछ जमा करके यहाँ की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी है उन्होंने चंदा किया, और हमने काफ़ी PPEs इकट्ठी की हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी है, क्योंकि डेली डेंटल के पेशेंट्स तो छोड़ें, जो
अलावा 4-5 फेशियल ट्रामा के पेशेंट्स रेगुलरली। सेकेंड जो इशू है वो पीडीए के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि हमें यहाँ जो हम फेस कर रहे हैं, हमने तो इलेक्टिव प्रोसीजर्स कर दिए हैं, इमरजेंसी सर्विसेज सिविल हॉस्पिटल में हम प्रोवाइड कर रहे थे, क्वेकरी को स्टॉप करने के लिए कोई भी इंतज़ाम नहीं। क्वैक्स जो है वो इस टोटल कोविड-19 के ड्यूरेशन में वो पीक पे हो, चाहे वो डाउन हो रहा हो, वो आज़ादी से विदाउट एसओपीज। तो एक चैनल जो है हमारा वो लीक हो रहा था, आप कैसे फर्दर जो है उस डिजीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, लेकिन क्वैक्स को ना गवर्नमेंट लेवल पे, किसी भी लेवल पे, ना हमने किसी लेवल पे उनको स्टॉप नहीं किया और वो थ्रू आउट करते रहे विदाउट एसओपीज। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था हमारे कंटिन्यू है, और किसी तरीके से हमारे डायरेक्टर जनरल साहब हैं हेल्थ के, उनसे भी हमने शिकायत की, उस पर कोई काम नहीं कर रहे। थर्ड जो है प्रॉब्लम वो ये है कि अगर आप टेली डेंटिस्ट्री का देख लें इशू, कि हम कुछ थ्रू टेली डेंटिस्ट्री पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने उसके लिए भी कोई काम नहीं किया है। जस्ट फॉर बलूचिस्तान कोई ऐप, उस बलूचिस्तान के रीजन के लिए ऐप बनाए और उसमें डॉक्टर्स को रजिस्टर्ड करें, और वो डॉक्टर घर से बैठे बैठे पेशेंट्स को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है लेकिन अर्जेंट बेसिस पे है। इसलिए हम गवर्नमेंट से या पीडीए से हम ये कहते हैं कि इस बात को भी आप रेज करें थ्रू डेंटल न्यूज़, कि एटलीस्ट जो है उस टेली डेंटिस्ट्री अगर आप करना चाहते हैं, आप क्लोज कांटेक्ट में नहीं आना चाहते, आप चाहते हैं कि ट्रीटमेंट जो है वो सिर्फ उन पेशेंट्स को दिया जाए जिनको अर्जेंट नीड है या एसेंशियल ट्रीटमेंट है, तो आप ऐसे ऐप्स बनाएं हर रीजन के लिए, डॉक्टर्स को रजिस्टर करें और फिर पब्लिक को आप इंटरनेट प्रोवाइड करें ताकि वो उसके वो सीख कर सके ट्रीटमेंट। तो ये बड़ा इशू है। हर पेशेंट जो है, ज़्यादातर यहाँ पे लोग सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से बिलोंग करते हैं, हर के पास इंटरनेट नहीं है, तो टेली डेंटिस्ट्री हो कैसे सकती है? इट्स नॉट पॉसिबल। दूसरा, लोगों के पास ऐसे मोबाइल्स भी तो नहीं है जो आप उनको चेक कर सकें और देख सकें। हर एक के पास स्मार्टफोन होता नहीं। एक प्रॉब्लम जो और था हमारी तरफ से, हमने सेक्रेटरी हेल्थ साहब से ये एक मीटिंग की थी और उसमें हमने उनको डेंटिस्ट्री के बारे में बताया, लेकिन जैसे कि महमूद शाह साहब ने कहा कि हम प्रेसिडेंट को ही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं या कन्वे कर रहे हैं कि हमें जो है आप वो कुछ हमारी हेल्प करें। तो यहाँ पर सेक्रेटरी हेल्थ साहब भी डेंटिस्ट्री को हियरिंग के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सब फोकस कर रहे हैं वो पल्मोनोलॉजिस्ट और सेकंड नंबर पे कार्डियक स्पेशलिस्ट को कर रहे हैं, क्योंकि ये उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो एक चीज़ ये है कि डेंटिस्ट्री में आप जो है कम से कम आप कुछ ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू या आप प्रिंट मीडिया के थ्रू आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें ताकि उनके दांत खराब ना हो, कैरीज ना हो। कुछ प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स वगैरह जो भी वो ले सकते हैं वो ले लें, ताकि हर पेशेंट जो है ना वो आपके पास प्रेजेंट ना हो। आप एक पेशेंट थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो वो भी डॉक्टर के पास बात करें। यहाँ पर लोग इतने लिटरेट नहीं, उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आप ना आए। वो कहते हैं आप आ गए हॉस्पिटल में बैठे हैं तो यू शुड चेक। मैं ये चाहता हूँ कि आप ये कहें कि सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों में अवेयरनेस डेवलप करें कि वो फ्लॉसिंग करें, ब्रशिंग करें, ताकि कम से कम पेशेंट। बिल्कुल। I'll move on with the doctor. Do we have Dr. Hassan with us? Dr. Hassan, are you here with us? जी प्लीज। बिल्कुल सर, आप थोड़ा ब्रीफ बताएं what is going on with the Punjab and because you are president of Gujranwala especially. So how is the private practice being continued there and what is the situation there? Assalamu alaikum to everybody. First of all, so I am grateful first of all to the Dental News and Dr. Mahmood Shah for providing us an opportunity to sit down together and think for the profession. मैं अपनी टॉक को शुरू करने से पहले मतलब
मेरे ध्यान में दो चीज़ें थी। एक तो मतलब आई एम डीपली सैडन कि हमारे दो बड़े इम्पोर्टेंट डेंटल सर्जन जो से नियर पास्ट में दे पास्ट अवे, डॉक्टर जावेद अशरफ कपल ऑफ मंथ्स बैक, 2-3 माह पहले फौत हुए, और डॉक्टर यूसुफ तारिक ऑलमोस्ट 3-4 वीक्स बैक। तो इनके लिए मैं चाहता था कि जो भी आपका बिलीफ है, काइंडली जब कभी आप दुआ करें तो इनको भी, इनके लिए मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ करिएगा। ये मुझे ख्याल आता है कि मैं आपको बोर नहीं करूंगा वो सारी बात सुनाने में जो ऑलरेडी मेरे से पहले डॉक्टर फारूक ने और डॉक्टर जवाद और हमारे जो सीनियर और डॉक्टर साहब हैं उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया है। करेंटली पंजाब में सूरत ये है कि आज की फिगर्स ये थी कि 74,000 प्लस केसेस आ चुके हैं। डेथ्स जो थी ना 1673 हो चुकी हैं, और रिकवर्ड पेशेंट जो है ना वो 25,000 हैं। ये ऑलमोस्ट सेम है जो सिंध में है। सिंध में जो है ना कुछ 2-4 हज़ार ज़्यादा हैं, लेकिन जो मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे हम लोकल एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो हम लोग ये फील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने अपनी टेस्टिंग जो कैपेबिलिटी है उसको रिड्यूस कर दी है। तो ये फिगर जो है ना, ये मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा ट्रू रिफ्लेक्शन है हमारी डिजीज़ की जो पाकिस्तान में प्रेवेल कर रही है। दूसरी बात ये है कि जो हम बात कर रहे हैं ना कि अगर हमारी एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट से कुछ है, बीइंग डेंटिस्ट, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी अपने आप को तिफल तसल्ली देने वाली बात है। गवर्नमेंट जो है ना वो आई डोंट थिंक सो कि ना तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो हेल्प आउट कर रही है एग्जैक्टली जो फ्रंट लाइन पे लोग लड़ रहे हैं उनको, और डेंटिस्ट्री तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह भी उसकी प्रायोरिटी में है कहीं पे भी। और हकीकत यह है कि हमें खुद इकट्ठे होके फ्रंट लाइन पे आना है और अपने मदद आपके तहत कुछ करना है। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बजाय इसके कि हम प्रैक्टिकल अप्रोच लें और ये सोचें और देखें कि अभी तक हमने क्या किया है, क्योंकि 3 माह तो गुजर चुके हैं। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी मार्च 15 ऑनवर्ड, 20 मार्च 20 को लॉकडाउन हुआ था, और उससे बाद आप देख लो अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, जून खत्म हो गया। मैं क्विकली बता देता हूँ कि गुजरांवाला में हम लोगों ने इसको किस तरह हैंडल किया, ताकि ये कि एक चीज़ आपके सामने आ जाए। सबसे पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया कि महीना 1.5 महीना हमने जो क्लिनिक्स अपने बंद भी रखे, तो उसमें हम फारिग नहीं बैठे और ये सोचा कि जब भी कभी खोलेंगे तो इसको कैसे हैंडल करना है। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ थी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो है वो उन दिनों में चूँकि एक तरह से हमारी थोड़ी आदत है कि हम लोग होर्डिंग करते हैं और चीज़ों को जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे उनको महंगा कर देते हैं बहुत ज़्यादा। तो हमने ये एफर्ट की कि जो हमारे दोस्त ऑलरेडी चाइना और बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर रहे थे, हमने उनको अपने पर्सनल लेवल पे रिक्वेस्ट किया एज अ एसोसिएशन कि वो लोग हमारे लिए पीपी इंपोर्ट करें। पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन गुजरांवाला ने खुद भी कुछ चीज़ें इंपोर्ट की, और मुझे खुशी है कि वो हम लोगों ने ऑल ओवर पाकिस्तान जिस किसी ने भी पीडीए गुजरांवाला को कभी सपोर्ट किया है, हमारे पास आके लेक्चर दिया है, या कभी भी हमें जो है ना वो इन टच रहे हैं, उनमें हमारे जो सीनियर्स हैं तमाम लोग जो है उन लोगों को हमने वो एज अ गिफ्ट भी भिजवाए, ताकि ये कि ये बेस्ट गिफ्ट हो सकता है इस मौके पे कि रेस्पिरेटर्स थे, मास्क थे और इस टाइप की चीज़ थी। वो बड़ा हमारा अच्छा तजर्बा रहा। कुछ लोगों ने, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने उसमें हमारे बिहाफ पे चीज़ें इंपोर्ट की, नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमें दे दी। तो वो बड़ा रीजनेबल सा एक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया कि जो चीज़ें बाहर इस वक्त मार्केट में टाइम्स ओके है 95 उस वक्त 1000 रुपये से ऊपर मिल रहा था, तो हमें 500 का कॉस्ट दिया। तो हमने उसी तरह जो है अपने वहाँ पे गुजरांवाला में उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया। रेस्पिरेटर्स जो कि 8-8 हज़ार 10,000 के कॉस्ट कर रहे थे, वो 3500 का P100 हमें कॉस्ट किया। तो वो भी हमने यहाँ पे जो है ना लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, ना लोगों यहाँ पे गुजरांवाला में किया बल्कि ऑल ओवर द पाकिस्तान अपने जो हमारे दोस्त कोलीग्स हैं उनको गिफ्ट भी भेजे। मेरे ख्याल में शायद कुछ आप में सिर्फ दोस्त बैठे होंगे, जिसमें डॉक्टर महमूद शाह साहब हैं और बाकी दोस्त हैं।
फिर इसमें एक नाम जो है ना डॉक्टर वकास वहाब हैं क्लियर पाथ से, उसने बड़ा कोऑपरेट किया, उसने हमारे बिहाफ पे स्पेशली काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट की और पीडी गुजरांवाला के प्लेटफॉर्म से उसने वो चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट भी की। जो डॉक्टर हजरात थे डेफिनेटली वो डोनेशन के चूंकि मद में नहीं आते, प्राइवेट प्रैक्टिस वाले भी और बाकी भी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो हमारे पास डोनेशन के पैसे इकट्ठे हुए हैं उसको हमने क्लिनिक के डॉक्टर्स के स्टाफ के लिए इक्विपमेंट खरीद के, जिसमें एक कवरऑल, फेस शील्ड, ग्लासेस और 2 KN95, ये एक पैकेज सा बना के तो उन लोगों को जिनसे डिस्ट्रीब्यूट किया। और बिलीव करें कि ये कुछ सारा मिला जुला के वो 1000 रुपए से नीचे ही पड़ा, तो वो मेरे ख्याल में उन लोगों को पहुंचना शुरू हो गया और अभी भी हमारे पास माशाल्लाह अवेलेबल हैं। और हम लोग को उन लोगों को जिनके असिस्टेंट्स और जो डॉक्टर्स का स्टाफ है जो कि खुद बेचारे परचेज नहीं कर सकते, और तो उन लोगों को जो है ना वो ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। दूसरी चीज ये थी कि हम एक जी मैं क्विकली थोड़ा सा, मैं मुझे अंदाजा है कि मेरे और दोस्त भी बात करना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको ज्यादा लंबा कोई एक फिर एक और चीज थी, हमें ये ख्याल आता था कि क्या बेस्ट वे है कि हम लोगों को डॉक्टर्स को ट्रेन कर सकें। तो उसकी ट्रेनिंग के दौरान हमने ये किया कि 7 सीरीज ऑफ लेक्चर अभी तक हमने अरेंज किए हैं ऑल ओवर नेशनल और इंटरनेशनल स्पीकर्स को लेके, कि हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, आवर स्टाफ एंड आवर क्लिनिक्स फॉर दिस पेंडेमिक। उसमें एयर चेंजेस पर आवर्स के हवाले से, उसमें डिसइंफेक्शन के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मतलब सामने एक्सप्लेन करता जाऊंगा, अगर तो वो शायद वक्त की किल्लत की तैयार जो है मैं वो, लेकिन ये है कि जो लोग हमारे लेक्चर साथ अटेंड करते रहे हैं, जो कि मैं कॉन्टिन्यूसली अपनी तरफ से सेंट्रल पीडीए के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी पोस्ट करता रहा हूँ, तो वो जानते होंगे कि उसका किसी ना किसी को फायदा भी हुआ होगा। और उसमें डॉक्टर सामिर काजी जो ही वाज की पर्सन, उन्होंने काफी हमें हेल्प किया। और लेटर ऑन चूंकि वो डॉक्टर महमूद शाह की रिक्वेस्ट के ऊपर उस ग्रुप में भी शामिल थे, और उन्होंने फिर 2 पेपर्स भी लिखे हैं टुवर्ड्स दिस जो एविडेंस बेस हैं और क्लिनिक्स को सर्वे करके लिखे हैं। तो एक डॉक्टर राशिद इकराम ने भी हमारे रिक्वेस्ट के ऊपर जो है ना वो ये एक पेपर जो है ना SOPs का बना के दिया। मेरा कहने का मकसद इन शॉर्ट ये है कि ये हमें प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमारे जो भी रिसोर्सेज हैं, मुझे आई बिलीव, मैं अपनी बात करूं, मुझे पता है कि आप लोगों ने हमसे बहुत ज्यादा किया होगा, लेकिन इस वक्त छोटे फैमिली यूनिट्स की तरह हमें एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत है। और इसमें डेफिनेटली रहनुमाई जो है ना वो जारी बात है, उसके बगैर काम नहीं होता। और डॉक्टर महमूद शाह हैं या डॉक्टर अरम चौहान है, मुझे खुशी है कि ये लोग गायब गारे, इनसे हम लोग सलाह मशवरा भी करते रहे हैं और दे हेल्प अस लॉट। तो मेरे ख्याल में अभी आप जब बात करके कोई दोबारा आएंगे इसी बात पे तो इंशाल्लाह आई विल ऐड मोर। लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल अप्रोच, गवर्नमेंट को देखना छोड़ दें, ये सोचें कि हम एक दूसरे के लिए क्या कर सकते हैं और मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कोई प्रॉपर सॉल्यूशन जनरेट करें, जिससे कि वो हमारा डेंटल सर्जन जो कि एक दुकान के अंदर एक यूनिट लगा के बैठा हुआ, वो किस तरह सर्वाइव कर सकता है। अब आने वाले दिनों में और अभी होना शुरू हो गया हुआ है कि लोग अपने सेटअप सेल करना शुरू हो गए हैं, तो ये तकलीफ दे है, मतलब मेरे लिए भी और डेफिनेटली आप लोगों के लिए भी इसी तरह। प्रोबेबली thank you very much. I will add further जहाँ पे आप कोई चीज़ होगी। We'll move on with Dr. Noor now. Sir, Karachi is the most urban city of Pakistan. How is dental practices being carried out here? What is the situation? Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, again, thankful to Dental News and Mahmood Shah for this great efforts. And he is always still, the main behind the gun. And Dental News is having the good working every time. So मैं शॉर्ट करूँगा. आई थिंक वी हैव ऑलरेडी 44 मिनट तो हो गए हमें और मेरा ख्याल है टाइम बहुत ही शॉर्ट है कि मैं ब्रीफली बताऊँगा. द कराची सिचुएशन, देयर पॉपुलेशन इज बिग एंड द प्रॉब्लम आर बिग, बट दो चीज़ें हर जगह है. मैं हमेशा देखता हूँ कि एक तो फेयर हर जगह है. देयर इज खौफ, फेयर इज एवरीवेयर नाउ बिटवीन द डेंटिस्ट एंड बिटवीन द जनरल पॉपुलेशंस. तो between the dentists we have this is our duty that we have to tell them how to protect yourself. उसको ऐसा लगता है कि यानी ये कोविड ऐसा नहीं है कि एड्स है या कोई ऐसी बीमारी कि हर कोई डरना शुरू हो जाता है, कोई अछूत बन गया, ऐसा लगता है. तो वो खौफ
उनको निकालें बाय द एजुकेशन, बिकॉज मैं खुद ये अक्सर ये इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता हूँ कोविड्स के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इटसेल्फ माय जब भी कोई लेक्चर प्रेजेंट करना तब मैं खुद पढ़ता हूँ, अदरवाइज पढ़ते ही नहीं, तो खुद पढ़ते ही नहीं कि प्रोटेक्शन कैसे की जाती है. इफ यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड योर फैमिली, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम. और अगर किसी के हो जाए तो देयर इज अ सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. सेकंड, पेशेंट्स कम होने की वजह अगेन उनमें खौफ है. जो अफोर्डिंग पेशेंट है उनमें खौफ ज्यादा है बिकॉज दे नो व्हाट इज कोविड. जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट है वो तो मास्क भी नहीं पहनते हैं, तो वो डेंटिस्ट की तरफ आते नहीं, वो गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे होते हैं. सो अगेन ये खौफ कम करना है between the dentist and the people, and then the thing will be normal. Second is PP. हर कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट हमें PP दिए. We have to do ourselves. हमने PP को खुद ठीक करना है. मैं इन प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, हमें भी हर जगह PP नहीं देते. We have to arrange ourselves all these stuff. तो उस पे हमने ऐड करने हैं अपनी उसके अंदर अपनी जो चार्जेस है उसके अंदर ऐड करना है, या you have to increase the number of the patients and decrease the charges. Again we do the emergency procedure हम करते हैं और कर रहे हैं, और still अल्हम्दुलिल्लाह हमने किसी को आज तक रिफ्यूज नहीं किया. being a maxillofacial surgeon we are doing the tracheostomy. वो ENT वाले डर रहे होते हैं, हम फिर भी कर लेते हैं. तो आई थिंक PP हमें खुद अपनी प्रोटेक्शन करनी है और अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन करनी है. और मैं उसको डिटेल में नहीं देना चाह रहा कि PP क्या है, किस तरह करते हैं और क्या करना है. तो एवरीबडी नो कि वो खुद पढ़ ले, जो कोविड की इंफॉर्मेशन है हर कोई पढ़ ले. दूसरा, मुजीब ने एक बात की थी कि फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव. यस, दिस इज फैक्ट कि मेजॉरिटी कुछ पेशेंट में आपको फॉल्स पॉजिटिव आते हैं और फॉल्स नेगेटिव भी आते हैं. ऐसे 2-3 हमारे डेंटिस्ट के साथ हुआ है. तो इसमें वही एक जुमला, कंसिडर एवरी पेशेंट इज अ कोविड कैरियर. हर एक पेशेंट को आपने वही प्रोटोकॉल देना है जिसे हम कंसिडर करते हैं एवरी पेशेंट इज हेपेटाइटिस बी और सी कैरियर. तो हमने उसको ये कंसिडर करना है कि हेपेटाइटिस ये कोविड का पेशेंट है, हमने सारी प्रिकॉशन करनी, जमघटा नहीं इकट्ठा करना, वेटिंग एरिया, एवरीबडी नो. सो मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाह रहा. गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक सो जितना भी आप रिक्वेस्ट है और एप्लीकेशन ये लिखेंगे, गवर्नमेंट अपने चक्करों में इतनी मेंटली तो बट डिस्टर्ब है. आई डोंट थिंक सो दे विल सम कंसिडर समथिंग. सो whatever we have to do ourselves. I think we have to make it wise, and then we can request and make a whatever we can do with the media and whatever, so we can educate our dentist. कोई ऐसी हमारी जो इंफॉर्मेशन हो वो डेंटिस्ट को बार बार दिलाएं, नंबर 1. और लोगों में ये खौफ किस तरह है कि ये बीमारी ऐसे नहीं कि प्रिकॉशन अगर एक डेंटिस्ट करता है तो बीमारी नहीं फैल सकती. So I think we can decrease their fear, and then we can do the procedure normally. Yeah. डॉक्टर नूर, आपसे मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूंगी. सर, टेलीडेंटिस्ट्री समथिंग दैट मेनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस आर ऑप्टिंग एंड सो आर द गवर्नमेंट वंस. Is it really an alternative for contemporary dental procedure? And B, should it be monetized? देखो, टेलीडेंटिस्ट्री में आप वो मरीज है जिसी को पेन है और पेन ऐसा हो कि आप मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं तो आप टेलीडेंटिस्ट्री कर सकते हैं. ना किसी पेशेंट को सपोज टू बी पल्पाइटिस है, आप उसको एंटीबायोटिक एक अर्सा तक दे सकते हैं. अल्टीमेटली यू हैव टू डू द डेंटल ट्रीटमेंट. सो यू हैव टू रीअश्योर दोस ट्रीटमेंट. लाइक किसी पेशेंट को कैलकुलस से प्लाक है, उसको जिंजिवाइटिस है, उनको कुछ दिन तक आपने एंटीबायोटिक दी और इंस्ट्रक्शन दी, उसके अलावा टेलीडेंटिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं. यू हैव टू डू द प्रोसीजर फॉर दोस पेशेंट when it is needed. So like patient है उसको cellulitis develop हो रहा है, उसको आप टेलीडेंटिस्ट्री तो नहीं कर सकते. You have to divide the patients. किस patient में आप टेलीडेंटिस्ट्री कर सकते हैं उसको आप brief कर सकते हैं on the phone whatever. But the thing is that it is not the solution for every problem. So if there is small problem, it will be increased with the passage of time. And should it be monetized? Of course you have to. Suppose एक patient है जिसे डॉक्टर जहांगीर ने क्या, हमारे पास लुडविग एंजाइना के पेशेंट क्यों डेवलप होते हैं. एक पेशेंट को डायबिटिक पेशेंट है, छोटा सा एब्सिस डेवलप हो रहा है, आप उसको दवाई देके छोड़ दे, वो बढ़ के और लुडविग एंजाइना एयरवे कंप्रोमाइज करते हैं. दैट कैन लीड टू द लिथल. सो यू हैव टू मॉनिटर स्मॉल प्रॉब्लम. इवन डेंटल कैरियर है, छोटे होकर बड़ा भी हो सकता है. So you have to monitor the patient and recall the patient and talk to the patient and send the greetings and whatever to follow this patient. Right. I'll move on my next question to Dr. Jawad. Next question आपसे ये था कि sir, dental education और dental students के बारे में क्या situation है, because online classes अब shift हो गई हैं. So what is your take on that? देखिए, COVID has been a very interesting situation, strange, interesting, fearful.
हर एक बंदे का अपना टेक था ऑन दिस, बट I have realized one very important thing, कि the essential skill that a teacher develops over time, that he takes live feedback from the students during the class, and that feedback may not necessarily be verbal feedback. That feedback is in the facial expressions of the students, whether they are grabbing a concept that he's trying to develop or building up. वो फीडबैक, एसेंशियल फीडबैक, वो मिसिंग होता है कि ऑनलाइन क्लासेस से या वीडियोस से और इन चीजों से. और इवन इफ इट इज अ लाइव क्लास ऑन Zoom, you can only see 10-15 faces at the same time, and the rest of the faces are hidden from you. तो ये जो चीज है ना जी, मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं, कभी ऑनलाइन क्लास जो है वो इन पर्सन क्लास के मुतबादिल नहीं हो सकती, स्पेशली इन मेडिकल साइंसेस. दूसरी जो कमी मुझे पर्सनली महसूस होती है वो है कि आप प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं सिखा सकते. वीडियोस और ये सब कुछ तो है, पर प्रैक्टिकली मरीज पे काम हो रहा हो, उसको ऑब्जर्व कर रहा हो, so that can't be a replacement for the videos, can't be a replacement for the live thing. तो क्लासेस चल भी रही हैं, but colleges are still closed. यहाँ KP में तो all dental colleges and classes are closed. There is no live interactive session, और ऑनलाइन क्लासेस सारी जगहों में चल रही, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, पब्लिक सेक्टर में, with mixed feedback from the students. Of course, students have a very good case this time of delaying their exams and not getting what they have been taught. तो वो और भी ज्यादा उनके पास एक अच्छा वो है, reason है to complain that the delivery of the educational matter was not up to a certain standard, not up to a certain quality. So I think कुछ सालों में तो आप वो कर सकते हैं. कुछ years ऐसे हैं जिनमें आप जैसे जहाँ जो क्लिनिकल नहीं है, जैसे फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर, पर सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स BDS में स्पेशली क्लिनिकल ईयर्स होते हैं, एंड मोर सो इन फाइनल ईयर. तो वो जो है we can't compensate for any of that in online teaching. हाँ, उसका एक रास्ता ये है कि the university or the colleges can indigenously decide कि जी ये essential component clinical जो है ये third year का miss हो गया है, so we'll extend the final year to, instead of 9 months or an 8 months academic year, this time our academic year will be of 11 or 12 months. और हम जो है जो थर्ड ईयर में रह गया था वो हम फाइनल ईयर को उस वक्त पढ़ाएंगे. और फाइनल ईयर का ये हो सकता है कि अगर उनको बहुत जल्दी है एग्जाम देने की, अब तो नहीं होनी चाहिए, बट बहुत जल्दी है, तो हमने उसकी यही सोचा है कि फिर उनके लिए स्ट्रक्चर्ड हाउस जॉब हो, और हाउस जॉब में उनको एसेंशियल स्किल्स सिखाई जाए जो फाइनल ईयर में somehow they forgot to learn or they couldn't learn because of this COVID lockdown. But that is one of the ways that this can be done. मेरे ख्याल से hopefully the government will decide opening up the institute soon, and hopefully inshallah things will get back to normal soon. This question to Dr. Umair now. Dr. Umair, what is the PTA vision for dental education now in such scenarios especially? I think in all fairness, making policies or giving direction or vision is basically the responsibility and the jurisdiction of the central branch. सर महमूद शाह साहब जो हैं, मेरे ख्याल में इस पे ज़्यादा बेहतर हमें बता सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने गाइडेंस हमें देनी है, और हम जो सिटी ब्रांचेस हैं वी आर मेनली देयर फॉर द एग्जीक्यूशन एंड आल्सो फॉर लाइक वर्कलोड शेयर करने के लिए. एज सच अभी डेंटल एजुकेशन की अगर मैं आपको इसमें अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ, डेंटल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वी कैन बेसिकली इसको आप दो चीज़ों में अगर डिवाइड कर लें, एक जो आपके अंडर ग्रेड जो डेंटल एजुकेशन है वो, और जो आपकी कंटिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो एजुकेशन जो हम डेंटल प्रैक्टिशनर्स के लिए कर सकते हैं. जैसे भी हमारे सीनियर कोलीग्स ने कहा है रिस्पेक्टफुली कि आप
जो हम इस वक्त हमारा जनरल प्रैक्टिशनर जो भी डेंटिस्ट है, वी नीड टू सबसे पहले क्रिएट एन अवेयरनेस. वी नीड टू लेट एवरीवन नो कि कोविड जो पैंडेमिक है, कोरोना की जो इन्फेक्शन है, इसका जो एक फियर है, उसका जो एक फोबिया है, उसको कम करने की ज़रूरत है. दिस इज समथिंग विच मोस्ट पीपल डिफीट, ओवरकम एंड रिकवर फ्रॉम. सो हमें एक तो ये जो फोबिया इसके साथ जो अटैच्ड है, इसकी जो नेगेटिविटी है, इसको कम करने की ज़रूरत है. दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने जो फेलो डेंटल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको इस चीज़ पे एजुकेट करने की भी ज़रूरत है कि अगर वो तमाम प्रॉपर SOPs फॉलो करें, तमाम जो यूनिवर्सल गाइडलाइंस, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस जो हम यूज़ करते हैं, जो हमें करनी चाहिए आम डेंटिस्ट्री के अंदर, कंसीडर एवरी पेशेंट एज एज अ पोटेंशियली इन्फेक्टेड और पोटेंशियली कैरियर पेशेंट. और हम अपनी तमाम जो भी हमारी प्रिवेंटिव जो हमारी जो हो सकती है SOPs, हम उनको अगर फॉलो करें तो आई थिंक वी कैन, हम अपनी जो हमारा जो डेंटल प्रैक्टिस और जो हमारे क्लिनिक्स जो एक तरह के बंद हो गए, हम उनको दोबारा रिससिटेट कर सकते हैं. जहाँ तक बात है कि हम जो डेंटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें क्या करेंगे, तो देखिए उसमें सबसे पहले जो आता है डायरेक्टिव, वो गवर्नमेंट की तरफ से आता है. Unless and until government decides to open the educational institutes, I don't think Pakistan Dental Association or Pakistan Medical Association, for that matter, they can take the initiative. क्योंकि एक कॉलेज से खाली एक कॉलेज की क्लासेस या कैंपस या उसके प्रेमिसेस इन्वॉल्व नहीं होते. देयर आर सर्टन टीयर्स जो उसके साथ अटैच होते हैं. कई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ टाउन है, उन्होंने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी यूज़ करनी है. सो एक काफ़ी एक कैस्केड इफेक्ट है. सो अनलेस एंड अनटिल government deems it safe for the institutional जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर देम टू ओपन अप, हम डेंटल कॉलेजेस की दोबारा रीओपनिंग की तरफ नहीं जा सकते. हाँ, हम लोग अपना जो पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन है, वो अपने फेलो कोलीग्स को एजुकेट करने में, उनको फैसिलिटेट करने में और उनमें अवेयरनेस क्रिएट करने के अंदर अपना किरदार किरदार अदा कर सकती है. बिल्कुल. Bilkul, sir. I'll move my next question to Dr. Mujib. Sir, COVID-19 and all this situation definitely has changed the dynamics of both the practice and of the treatment now. Sir, what is the vision or the policies that you are looking up for the future of dentistry post COVID-19? अस्सलामुअलैकुम. जी सर. बिल्कुल आपका क्वेश्चन तो वैलिड है, लेकिन वो जो डॉक्टर उमेर जैसे कह रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट साइड पे ये डिसीजन होगा, लेकिन ये है कि इसमें एक चीज ये कि क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस लिए जा सकते हैं, और दूसरा जो प्रैक्टिकल क्लासेस हैं पहले पेशेंट पे हुआ करती थी, आजकल गवर्नमेंट अगर उनमें चाहे, मुख्तलिफ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो ये फैसिलिटीज़ हैं कि वो आप सिमुलेटर पे, स्किल लैब अवेलेबल हैं जिन जिन कॉलेजेस में, वो आप उस पर डमी पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं जो हमारे क्लिनिकल प्रोसीजर्स होते हैं. क्योंकि सिर्फ क्लासेस से आप किसी को डेंटल सर्जन नहीं बना सकते जब तक उसको क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं करवाई जाए, उसको वो भी उनकी कोर्स में शामिल होता है. तो इस चीज को, ये गवर्नमेंट को इस चीज में करना चाहिए. अगर ऐसे नहीं करेंगे तो हाउ लॉन्ग यू विल क्लोज योर इंस्टीट्यूट्स. अगर ये वायरस सपोज 1 साल चलता है, 2 साल चलता है, तो क्या आप सारे सिलसिले को और सारे सिस्टम्स को बंद नहीं कर सकते हैं? हाँ, उनके लिए आप कोई ना कोई वे आउट निकालना पड़ेगा और गवर्नमेंट को फॉरवर्ड होना पड़ेगा. गवर्नमेंट इसमें इनिशिएटिव ले, हमारी पाकिस्तान डेंटल एसोसिएशन, PMA और जो भी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो खासतौर पे कॉलेजेस हैं, वो फैसिलिटेट करें. और दूसरा इसमें ये है कि फिर हॉस्टलिंग हमारा प्रॉब्लम होगा. अगर, क्योंकि जब आप हॉस्टल प्रोवाइड कर रहे हो तो हॉस्टल में आप बच्चों को 3-3, 4-4 बच्चों को, हॉस्टलर्स को आप रहाते हो, वो आपके लिए एक इशू होगा. क्योंकि फिर आपको वहाँ पे आपको इंडिविजुअल यानी कि अकोमोडेशन देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को. अगर आप नहीं देंगे तो एक इन्फेक्टेड हो गया, वो अपने सारे कलीग्स को इन्फेक्टेड कर देगा. और ऑनलाइन क्लासेस होने चाहिए और उसके साथ जो है प्रैक्टिकल क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए उनको स्किल लैब जैसे लम्स में है, आई थिंक 2 में है, और मुख्तलिफ और इदारों में भी होंगी, गवर्नमेंट ने हर जगह पे बनवाई थी.
तो इसमें जो कॉलेजेस हैं के हेड है ना, उनको आगे आना पड़ेगा, और अगर जो डिफिशिएंसीज हैं वो उनको फुलफिल करनी पड़ेंगी। अभी जैसे मैं आपको एक इसमें आपने ये इम्पोर्टेंट, ये बड़ा बर्निंग इशू है। अभी हमारे यहाँ मेरे पास एक हाउजाब की बैच कंप्लीट हो गई है। वैसे हमारी बैच आनी थी नहीं मई में, लेकिन इस सिचुएशन की वजह से फाइनल ईयर बीडीएस का एग्जाम नहीं हुआ है लम्स का, तो दे आर स्टिल वेटिंग फॉर देयर एग्जामिनेशन। और फिर मुझे किसी ने कहा कि हम उनको प्रोमोट कर देंगे, तो मैंने कहा इट इज इम्पॉसिबल कि आप किसी को प्रोमोट कर दें। ऐसे आप किसी को डॉक्टर बना रहे हैं, आप उसको कैसे प्रोमोट करेंगे? फर्स्ट ईयर को प्रोमोट कर सकते हैं, सेकंड ईयर को प्रोमोट कर सकते हैं कि आगे चल के उनका एग्जाम लिया जा सकता है, लेकिन आप फाइनल प्रोफेशनल को प्रोमोट नहीं कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर को प्रोमोट करेंगे तो उसमें तो फिर वो मिक्स हो जाएगा, कुछ कॉम्पिटेंट और कुछ अनकॉम्पिटेंट सारे आ जाएंगे। तो ये एक बर्निंग इशू है। इसके लिए गवर्नमेंट को और यूनिवर्सिटीज के हेड्स को आगे आना चाहिए और उनको इस सीरियस इशू पे बिल्कुल सीरियस होना चाहिए। ये बच्चों के फ्यूचर का मसला है। डॉक्टर हसन, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इस वक्त स्पेशली इन कोविड-19 सिचुएशन कितना इम्पोर्टेंट है फॉर डेंटल फ्रेटर्निटी टू कम ऑन वन प्लेटफॉर्म, और सर पीडीए का इसके अंदर क्या रोल है और क्या प्लान्स हैं उनके? जी, मेरे ख्याल में पीडीए का सारा रोल ही पीडीए का है। बेसिकली जो यूनिट है हमारे प्रोफेशन का, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड डेंटल एसोसिएशंस आपको गाइडलाइंस देती हैं, इवन गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देती हैं। तो जैसे शाह साहब ने वो काफ़ी काम किया है, यहाँ वो मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट तक पहुंचानी चाहिए गाइडलाइंस, जो इंडिविजुअली जिस तरह डॉक्टर सामिर वगैरह ने बनाई हैं वो भी पहुंचानी चाहिए, सो दैट कि रियलिटी की बेस पे जो है ना वो एसओपीज बने। और एक छोटा सा प्रपोजल जैसे गवर्नमेंट के पार्ट पे कि जो रिक्वेस्ट उनसे करने वाली है वो 2-3 बातें हैं काम की। एक तो ये है कि इस मौके पे इंटरेस्ट फ्री लोन जनरेट करें, और जिस तरह हेल्थ कमीशन वगैरह जो पहले देते थे, ये इस वक्त की ज़रूरत है। अगर हमने वो अपने जो यंगस्टर्स हैं या जो मीडियम सेटअप लेके लोग चला रहे हैं, वो उन लोगों को बचाना है, तो उनको फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है। जो अगर एक बंदे के पास 4 डॉक्टर के पास 4 असिस्टेंट काम करते हैं, वो 4 फैमिलीज को फीड कर रहा है, वो सब निकाल देगा तो फिर एक नया कायोस जो है ना वो चलेगा। वो एक तो ये है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स की रिक्वेस्ट करनी चाहिए। मेरी शाह साहब से दरख्वास्त है कि वो जो भी ऐसे हल्के हैं जहाँ पे कोई बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे ये बात करनी चाहिए। दूसरा ये है कि पीपीई जो है ये इनकी अवेलेबिलिटी नो प्रॉफिट नो लॉस पे इंश्योर करनी चाहिए, खा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के थ्रू की जाए, खा डेंटल एसोसिएशन के थ्रू की जाए, खा गवर्नमेंट को शॉप बना दे जहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, डॉक्टर्स और डेंटिस्ट सब के लिए पीपीईज अवेलेबल हों, और पैसों से दे दें लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे दें। ये जितनी एड शेड आ रही है ये आखिर जा कहाँ रही है, मतलब इसका कोई जो तरीका कार है, हम वी आर नो बॉडी क्वेश्चन करें, लेकिन ये कि एटलीस्ट हमारे पास अवेलेबिलिटी होना चाहिए। एक और चीज़ है कि जिस तरह थोड़ा सा एक्टिवेट करना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये ट्रेनिंग करवाएं। जब इन्होंने पंजाब हेल्थ कमीशन ने और एसओपीज जब आपने लागू किए थे, तो सिटी टू सिटी जाके इन्होंने ट्रेनिंग की थी, तो इंश्योर करें बुकलेट्स बनाएं और डोर स्टेप पे जाके सिटी टू सिटी जाके उसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए ट्रेनिंग्स करवाएं कि जो, क्योंकि ये बेसिकली एक चीज को हमें अपने ध्यान में रखना चाहिए, जो रियलिटी है वो ये है कि क्रॉस इन्फेक्शन, बेसिक क्रॉस इन्फेक्शन जो मेजर्स हैं, अभी बहुत सारे क्लिनिक्स शायद हमारे वो 100% पूरा नहीं करते, और कोविड तो उससे ऊपर की चीज मांगता है। कोविड कहता है कि जी एयर चेंजेस पर आवर 20+ होने चाहिए, और आपके जो है ना बाकी जो गैजेट्स हैं वो पूरे होने चाहिए, और चीज़ है तो वो उसके लिए थोड़ा सा अब ये दिस इज द राइट टाइम टू गेट बैक टू द बेसिक्स। पहले बेसिक्स को लेके इम्प्रूव किया जाए, और फिर जब बेसिक्स से आप एक लेवल पे आ जाएं तो उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे आगे लेके चला जाए, क्योंकि इसमें असल में जो एट स्टेक है वो जिंदगी है, वो डॉक्टर है, उसका स्टाफ है, उसकी फैमिलीज हैं, स्टाफ की फैमिलीज हैं, तो इसमें मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि हम लोग कोई गलती कर सकें।
तो यही बस 2-3 चीजें हैं। बाकी कमी एक शॉर्ट सा और चीज है कि हम लोग टेली डेंटिस्ट्री पे काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ, तो वो बहुत ज्यादा वर्केबल शायद उस तरह से लंबे अरसे के लिए नहीं होगी। डॉक्टर उमैर ने ठीक बात की कि वो असल में कितनी देर तक आप दवाइयाँ खिलाएंगे, 5-7 दिन खिला देंगे, जिसकी रूट कैनाल होनी है उसकी होनी है तो उसको सुनर लेटर टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती हैं, जैसे ART टेक्निक है और ये दूसरी है। वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको जो है ना मेरे ख्याल में अब हमारा नेक्स्ट प्लान भी है कि उनके लेक्चर्स करवाए जाएं ताकि वो कुछ रियल टाइम जो है ना आके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें। तो अगेन थैंक यू वेरी मच, मैं आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, थैंक यू। डॉक्टर जहांगीर, आर यू विद अस? Dr. Jahangir? Yes, he's here. I think you should ask the question. Okay. He's here. Okay, sir, my question to you is, what are your demands from the government, both from a perspective of private dental practitioners and in journal as well? I think मेरा तो ये ख्याल है कि सबसे पहले एक चीज़ PPE कह रहे कि यूज़ करेंगे। फ्यू डेज बैक मैंने एक वीडियो देखी थी, पाकिस्तान कह रहे कि खुद वो जो है वो मास्क N95 बना रहे हैं, जब उसको काटा गया दरमियान से कोई कॉटन निकल रहा है। तो गवर्नमेंट से डिमांड करूंगा जो PPE प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट को, कोई भी इदारा कर रहा है, कोई भी NGO कर रहा है, उसका स्टैंडर्ड देखें कि वो वाकई ठीक है या नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे पास है। दूसरा ये है कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट, मैंने कहा यहाँ पर लोग ये डिमांड करते हैं कि आप इलेक्टिव करें, इस चीज़ को आप फिनांस करें। गवर्नमेंट को चाहिए कि सिर्फ आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए और सर्जन्स के पास। इसके अलावा जो है अवेयरनेस प्रोग्राम्स स्टार्ट करनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। स्पेशली पहले भी मैं कह चुका हूँ कि प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स हैं, ताकि हमारे पास कम से कम और डिफरेंट हम देख रहे हैं कि दूसरे कंट्रीज़ में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, सैनिटाइजर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं हर स्ट्रीट्स में, हर जगह। हमारे हॉस्पिटल्स में कहीं पर भी किसी वॉक थ्रू गेट के थ्रू जो भी आ रहा है उसको ना तो सैनिटाइज करने का कोई इंतज़ाम है, ना कोई फुट मैट सैनिटाइजर्स हैं, ना कोई ऐसे इक्विपमेंट्स है। इसके अलावा हमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि फैसिलिटीज़ हमें स्क्रीनिंग की प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि ऑथेंटिक और वो किट्स ना हो जिसमें डाउट हो। क्योंकि हमारे काफ़ी एक सीनियर कुलीग ने कहा है, पैथोलॉजिस्ट हैं, कि किट्स हैं जो PCR हम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। मैं ये चाहूँगा कि अगर आप प्रिवेंट कर रहे हैं तो अपर लेवल पे गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है, हम करेंगे कि वो इन चीज़ों को देखें और ठीक करें। था कि कुंडी साहब की बात पूरी नहीं हो पाई, जहांगीर साहब की बात भी कुछ समझ में आ गई, कुछ उन्होंने क्वैक्स का जिक्र किया, टेली डेंटिस्ट्री का जिक्र किया। टेली डेंटिस्ट्री पर भी नूर भाई ने सही मेरे ख्याल से बता दिया कि उसकी बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन है। सेकेंडली जो मेन चीज़ है वो ये है कि इस वक्त PDA क्या कर सकती है इसके अंदर। एक तो PDA जो कर सकती है वो गवर्नमेंट को ऊपर कुछ रिकमेंडेशंस अपनी बना करके भेज सकती है, और इस लिहाज में मेरे ख्याल से जो हमारा PDA ऑफिस बेरर्स का ग्रुप है उसमें मैं ये चीज़ फ्लोट कर दूंगा कि भाई रिकमेंडेशंस की कोई कमेटी एक छोटी बना दी जाए, 2-4-5 दिन के अंदर स्पेसिफिक और प्रैक्टिकल रिकमेंडेशंस बनाए, विच आई वुड सजेस्ट कि जो हमारी कम्युनिटी से और PDA के पास्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से हम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को ही भेजें। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, और 3 सूबों में तो उनकी हुकूमत है और फेडरल में भी उनकी हुकूमत है। जहाँ तक रहा सिंध का ताल्लुक, तो सिंध में भी गवर्नर भी उनका है। अगर चीफ मिनिस्टर की होगी तो मैं उनसे, चीफ मिनिस्टर से खुद भी बात कर लूंगा। तो मेरे ख्याल से आरिफ अलवी साहब को हम जो है ना फोकस करें कि उनको हम भेजें, वरना तो आप कौन से हेल्थ सेक्रेटरी को भेजेंगे, कौन से हेल्थ मिनिस्टर को भेजेंगे, इट विल गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो सेकेंडली आरिफ अलवी साहब से जब भी मैंने बात की वो हमेशा मुझे यही कहते हैं कि शाहजी सब मिलके मेरे पास आओ, सब मिलके मेरे पास आओ, यानी कि एक बंदे की बात मैं नहीं मानूंगा। तो आई वुड सजेस्ट कि एक जो रिकमेंडेशंस का लेटर जो बने उसमें सारे प्रेसिडेंट्स की, ब्रांच के प्रेसिडेंट्स की सिग्नेचर हो। जब 19 ब्रांचेस की सेंट्रल काउंसिल की होगी तो इट विल डेफिनेटली क्रिएट अ काइंड ऑफ अ प्रेशर।
कि प्रेसिडेंट साहब इसके ऊपर कुछ ना कुछ वो जरूर करें। उसके अंदर ये सारी बातें इंटरेस्ट फ्री लोन की भी आई है, हसन बशीर साहब ने जो की है, पीपीईज की भी आई है। और हालांकि पीपीईज मेरा जाती ख्याल ये है कि प्राइवेट क्लिनिक वाले को नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वो जब कमा रहा है तो जैसे नूरुल वहाब साहब ने कहा कि वो अपनी कॉस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दे या अपनी फीस के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दे। 400-500 का पीपीई आजकल इजीली मिल जाता है। लेकिन जो मास्क है, वो मास्क की भी अभी जहांगीर अहमद साहब ने बात की कि बिल्कुल सही बात है, मास्क हमारे लिए लाइफ सेविंग एक चीज है, और वो बहुत फेक आ रहे हैं मार्केट के अंदर। N95 बहुत फेक आ रहा है और दूसरे मास्क बहुत फेक आ रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट और वेरी अनएथिकल। उनके ऊपर एक क्रैकडाउन होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, और हम भी देखें कि ये कौन से एलिमेंट्स हैं कि जो ये फेक मास्क जो है ना मार्केट के अंदर लेकर के आ रहे हैं, उनको हम जो है ना एक्सपोज करें, क्योंकि ये हमारे लिए लाइफ और डेथ का मैटर है। तीसरी चीज ये है कि क्लिनिक्स का, जहां तक मेरा तज्जिया है, क्लिनिक्स तो तकरीबन मेरे ख्याल से 90% खुली हुई है, अब खुल गई है। पहले महीना बनती है, मार्च अप्रैल में बनती है, लेकिन 90% खुल गई है, और 10% शायद बंद होंगी या कुछ सीनियर डेंटिस्ट ने बंद की भी है। और एक तजवीज़ ये भी आई थी फरूक बशीर साहब के फैसलाबाद के प्रेसिडेंट की कि जी जो सीनियर डेंटिस्ट हैं उनको कम से कम रिक्वेस्ट करें कि जी वो 3 दिन जो है ना, वो 3 महीने घर पर बैठ जाएं। तो वो भी हम फ्लोट करके देखते हैं कि अगर वो बात हमारी मानते हैं तो जो 60+ जो डेंटिस्ट हैं वो फिलहाल घर पर 3 महीने बैठ जाएं। और चौथी चीज़ ये है कि ये एक तो लेटर मैं कह रहा हूँ कि रिकमेंडेशन का लेटर बना के साइंड बाय ऑल द ब्रांचेस एंड द सेंट्रल काउंसिल, वो अलवी साहब के पास भेजें, और अगर फिर जरूरत हो तो उनसे एक मुलाकात भी पर्सनली भी कर लें, और उनसे कुछ ना कुछ मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हमें फायदा होगा। दूसरी चीज ये है कि एक जो ये पहले हसन बशीर साहब ने भी कहा था कि मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो मैसेज बना करके ना डेंटिस्ट के लिए फ्रॉम पीडीए वो भेजूं, ताकि जो एक ये जो डिप्रेशन है डेंटिस्ट के अंदर, उसको हम थोड़ा सा उनको एलिवेट करने की कोशिश करें और उनको रीइंफोर्स करने की कोशिश करें कि भाई नाक, मुंह और आंख, इनको आप प्रोटेक्टेड रखें तो आप काफी हद तक सिक्योर आप रहते हैं। और मेरे ख्याल से यही सब बातें हैं। और अगर कोई खास कोई रिकमेंडेशन को देना चाहे, हालांकि मैं ये पीडीए ऑफिस बेरर्स ग्रुप में डाल दूंगा रिकमेंडेशंस के लिए, रिकमेंडेशंस हम बना लें। सेकेंडली, अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से अगर रिक्वेस्ट आएगी, जो भी पीडीए सेंट्रल के लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट आएगी पीपीईज वगैरह के लिए, तो इवन फ्रॉम इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज गवर्नमेंट सेक्टर वालों के लिए पीडीए सेंट्रल को जो है ना, ये मेरी कमिटमेंट है कि अगर रिक्वेस्ट आएगी तो हम उनको जो है ना बिल्कुल हेल्प आउट करेंगे, जो भी हमसे हो सकेगा। प्राइवेट में नहीं, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो डेंटिस्ट काम कर रहे हैं और वही बेचारे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम के अंदर आते हैं, तो उनको हम हेल्प आउट करेंगे। और बाकी जो मुजीब साहब ने जो बताया कि हाँ, कोविड के साथ बिल्कुल हम बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में करते हैं, और हम चाहे फ्रंटलाइन वर्कर फिर भी नहीं कहलाते हैं, तो ये बात सही है। ये चीजों का रिकॉग्नाइज करने के लिए हम सबको जो है ना अपने अपने रोल प्ले करना होगा। एक चीज एंड में मैं कह दूं कि ये डॉक्टर मोहद्दर आपने जो कहा ना, वो इंटीरियर सिंध का क्या हाल है, तो इसमें मैं वही बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। सिंध जो है वो कराची से लेकर के, शिकारपुर से लेकर के कश्मीर तक वो एक ही सिंध है। कभी हम इंटीरियर पंजाब नहीं कहते हैं, इंटीरियर केपी के नहीं कहते हैं, इंटीरियर बलूचिस्तान नहीं कहते हैं। सिंध को क्यों ये करते हैं कि कराची अलग कर दिया और बाकी इंटीरियर सिंध हो गया? सिंध पूरा पंजाब के अंदर सदर्न पंजाब तो कहते हैं ना सर। सदर्न पंजाब और नॉर्दर्न पंजाब तो चले एक वो हो गया ना, लेकिन इंटीरियर तो ये तो लेटरल टोन में ये कहना चाह रहा था। बाकी ये है कि इंशाल्लाह रहेंगे, एंड आई एम श्योर, प्रीटी श्योर कि ये ग्राफ नीचे जाएगा और सूनर देन लेटर जाएगा, और हम जो है ना विल कम आउट of this crisis. Dr. Mahmood, please something you can add for the dental education और जो dental students हैं सर, उनके लिए भी please. डेंटल एजुकेशन तो अभी देखें ऑनलाइन ही चल रही है, कॉलेजेस वगैरह बंद है। सुनने में आ रहा है कि नेक्स्ट मंथ से शायद ये कॉलेजेस वगैरह खुलेंगे। उसमें भी जैसे ये मुजीब करवर साहब ने कहा कि हॉस्टल्स का प्रॉब्लम है, क्लासरूम्स में प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हॉस्टलाइट्स के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है। बट एट द सेम टाइम डेंटिस्ट्री एक ऐसी फील्ड है जो ऑनलाइन हो नहीं सकती है फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि उसमें आपको प्रैक्टिकल ओपीडी और पेशेंट इंटरेक्शन चाहिए, चाहे फैंटम एक्ट पर करें चाहे लाइव पेशेंट्स के ऊपर करें। तो वो मेरे ख्याल से 1 आध महीने में दुनिया भर में भी खुल रही है, तो यहाँ पर भी खुल जानी चाहिए और SOPs के साथ।
तो डेंटल एजुकेशन तो इसी तरह से आगे चलेगी और होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये हर चीज स्ट्रीमलाइन हो जानी चाहिए इंशाल्लाह. Because any last message, sir, you have for our viewers or for dental community who are looking up to PDA? देखिए डेंटल कम्युनिटी को मैसेज मैं क्या कहूँगा, यही कह सकता हूँ कि हैंग ऑन. हम सब वी आर ऑल हैंगिंग ऑन. ये एक प्रॉब्लम है जिसको वील पास थ्रू दिस, जिसको कहते हैं ना दिस टू शैल पास. तो ये भी गुजर जाएगा वक्त, पहले वक्त भी गुजर गया, ये वक्त भी गुजर जाएगा. इसमें पीडीए से अगर किसी को कोई इंडिविजुअल पीडीए की उनको पास ईमेल है president@pda.org, उस पर, या अगर कोई इंडिविजुअल कोई हेल्प चाहते हैं तो वो जरूर इन कॉन्फिडेंस भी चाहते हैं तो मुझे कॉन्फिडेंशियली भी भेज सकते हैं. जो भी हमसे होगा सिंसियरली, लेकिन ये है कि ऑन मेरिट, तो वो हम उसको करेंगे. और जैसे मैंने अर्ज किया कि पीपीईज हैं या इस टाइप की कुछ चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर में अगर चाहिए होंगी तो उसमें भी पीडीए सेंटर इंशाल्लाह हेल्प आउट करेगी. थर्डली, जैसे मैंने बताया कि हम एक रिकमेंडेशन लेटर बना करके उनको साइंड बाय ऑल द ब्रांचेस और प्रेसिडेंट साहब को फोकस करें और उनको भेजें भी और उनसे मिलें भी. और इसमें मैं हाशिम भाई से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी हमारा साथ दें. ये भी पीटीआई के पुराने वर्कर हैं और इस चीज़ को मेरे ख्याल से इसी तरह से ये 3-4 स्ट्रेटेजीज होंगी तो हम इसको आगे लेकर के चल सकते हैं इंशाल्लाह. Thank you. And with that, we have reached the very end of our session. As we have discussed, the possibility of coming out from this pandemic situation can be achieved when ground realities are addressed. Therefore, it is high time to revisit policies and facilitate dental professionals and students who want to make a difference and work for the betterment even during tough times. In the state of coronavirus pandemic, the dental community hence should not be burdened with more panic. Thank you, team of PTA, for taking time out of busy schedule and guiding us through your experiences and sharing your valuable insights. I hope the listeners have also enjoyed the session as well. Thank you, everyone who were watching us today. Please continue following dental news on social media channels for latest updates, facts from the world of dentistry. Also, don't forget to check our website www.dentalnewstk.com. Thank you so much and keep yourselves safe. Allah Hafiz.